So good afternoon everybody, you all are welcome to the class. I hope you all have been having a great time, and so today's lecture is in continuation what we are doing from last of the week, and I hope things were pretty good at your end and we continued without much of the disruption. I had to go. Okay, so Imani is here. How are you, Imani? I hope you have watched all the lectures. So, fine. So we were discussing last of the lecture. We were discussing the new public management, right? So new public management के बारे में I told you all these points. All of the points I had already discussed with you, all these points. A weak public administration, then the important administrative reforms in the West that were happening, and Minobrook Conference second also happened, and reinventing the government. So we were discussing the principles of new public management. So new public management, you see, is NPM is emphasizing on economy, efficiency, effectiveness, reorganization of the bureaucracy into different agencies. Haven't we done it? No. No, sir. Okay, so we are doing fine. So what are the principles? What are the principles of new public administration? So first of all, new public administration is coming in the times of late 70s and 80s, right? And there is a sense of saturation with the big government, because new public administration talked about having a government say, right? And with the big government, there were some pathologies of the public administration which seeped in. So emphasis was on economy, effectiveness and efficiency, and too much of regulation was not invited for. ब्यूरोक्रेसी को डिफरेंट एजेंसीज में चेंज कर दो, जहां पर जैसे नेक्स्ट स्टेप्स एक प्रोग्राम चूज किया गया, ठीक है, जहां पर क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं दे विल वर्क आउट एंड दे विल सर्व बेटर, राइट? और कंपटीशन ला दो क्वासी मार्केट सिस्टम्स और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स में। इसका मतलब ये है क्वासी मार्केट जैसी सिस्टम्स लेके आ जाओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन लाओ, साथ में कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना शुरू कर दो। कुछ गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या करने शुरू कर दो, प्राइवेट करने शुरू कर दो। तो जब प्राइवेटाइजेशन, ऐसा माना गया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस विल ब्रिंग द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी इन द सिस्टम, ओके? एंड देन देयर एक्सपेंस वुड रिड्यूस, इनकम ग्रोथ होगी। जो बिग ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या आता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसेज, लार्ज नंबर ऑफ कार्स, large number of human resource that you have to keep, that we can do away with. And if we can do away with it, then definitely we can save some of the money. And if we are able to save the money, then obviously what will happen is we will also have income growth of the public organizations, and that would eventually help in making the bureaucracy more business-like. So greater competition in public sector. For an example, you can understand it with India. If we take an example, so there are these electricity boards which supply the electricity, and public utilities are there where government is also having a part in the supply of the electricity. Then there are the private enterprises also. There are private enterprises which are also having now competition with the government. For an example, I have told you about BSES, right? राजधानी में, दिल्ली में बिजली की जो वितरण है
distribution is also done by the private sector. Or for that matter, when the BSNL and MTNL were having say into the markets, then there was introduction of private sector, and it led to the increase of the competition, and eventually it led to the lowering down of the prices and quality of service also improved. So NPM का emphasis यही है प्राइवेट सेक्टर के स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट से, वहां से जाकर तो बोरो कर लो टेक्निक्स from there and put them into the public administration. So managerialism, वहां पर रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाएगा मैनेजर की तरह. So managerial रोल हो जाएगा तो मार्केट लाइक, right, rather than administration. The public role is envisaged to be lessened and more of a managerial practices and managerial concept of economy effectiveness, right, and return on investment. If there are some of the functions which are not bringing any revenue and rather are burden, even if they are important, they have to be contracted out. कि सरकारी है तो प्राइवेट कर दो, right? Okay. Increasing the flexibility and mobility of organization, working conditions को, personnel को और organization के structure को change करो. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 5 बजे ऑफिस बंद हो गया तो घर चलेगा घर कि बाबूजी अब तो 5 बज गए हैं, अब तो भैया ऑफ हो गया, अब कल को आना. कोई व्यक्ति आया है 200 किलोमीटर दूर से, उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है. तो अभी क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, सर्विस ओरिएंटेड हो जाएगा, बिकॉज द सिटीजन इज मोर ऑफ अ क्लाइंट नाउ, ठीक है, कस्टमर. सो कस्टमर की तरह ट्रीट करना है, एंड कस्टमर अगर आ रहा है और उसका फीडबैक अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा, वहां से फ्लाइट होगी लोगों की, उस ब्रांड को या उस गवर्नमेंट को या उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जाएगा, ठीक. कंज्यूमरिज्म पे, उपभोक्तावाद पे ज्यादा ध्यान, सिटीजन्स को माना गया कि ये कंज्यूम कर रहे हैं हमारी सर्विस, ठीक है. और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस. जो बिग गवर्नमेंट का क्या होता है, ऑफिसेज में पावर कंसंट्रेशन होना, तो ये नहीं होगा, बल्कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर लेंगे, छोटी छोटी यूनिट्स बना देंगे कि अब आपको जिला मुख्यालय पे आने की जरूरत नहीं है, अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं, ऐसा, ठीक है. उस समय नहीं थे कॉमन सर्विस सेंटर, पर मैं बता रहा हूँ, अगर ई गवर्नेंस का भी मॉडल बताऊंगा आपको तो आजकल, तो वहां क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन को ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन को एक्शन में उतारा जाता है हब एंड स्पोक मॉडल से. तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ओपन होगा कम्युनिकेशन, ओपन होगा आपका हायरार्की में, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में, आप डाउन टू अप एंड अप टू डाउन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जो कि इट इज वेरी अगेंस्ट और फॉर दैट मैटर वेरी अपोजिट टू ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग है. कैसे अलग है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी अलग है और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी अलग है. बताओ. अच्छा, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है? जो पहले से चला रहा है. ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई ना, मतलब पहले से चला रहा हो. अच्छा, फिर रिजिड, हायरार्की वाला, क्लोज्ड, मिस्टीरियस, ये सब होता है, ठीक है. इट इज क्लोज्ड, हायरार्की, मिस्टीरियस होता है, ठीक है. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लिमिटेड होते हैं. अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहा गया कि रेलेवेंस लाओ, वैल्यूज लाओ, इक्विटी लाओ, सोशल इक्विटी लाओ, बट अल्टीमेटली रोल किसका है? रोल गवर्नमेंट का ही है, ठीक है. सो और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या है, गवर्नमेंट का रोल अब स्टीयरिंग का है रादर देन ड्राइविंग का. अब गवर्नमेंट केवल डायरेक्शन दिखा रही है और ड्राइविंग को प्राइवेट सेक्टर को कह दिया आओ,
and take away the powers of the government. Retreat of the state, contracting out. Contracting out का मतलब अभी तो बताया, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? कितनी बार बताया, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया? प्राइवेट सेक्टर हाँ, यस, सब कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यही है, राइट? यस, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड एंड लेटर ऑन इट वाज वेरी सेंट्रलाइज्ड, इट वाज वेरी यू विल से ऑथर स्टेटस पोइस्ट, नॉन चेंजिंग, ठीक है? तो उससे सुधार हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये माना गया कि अभी एजेंसी ऑफ द चेंज जो लाने की बात हुई है वो नहीं बदली है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज अ कॉमनैलिटी दैट एजेंसी इज योर सेम ब्यूरोक्रेसी, बट ब्यूरोक्रेसी को क्या बोला गया कि रेलेवेंट हो जाओ, इक्विटी लेके आओ, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन लेके आओ। है ये सब याद है या भूल गए? अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? रेलेवेंस, वैल्यू, RVCCS मैंने बताया था उसमें, पढ़ा है लेक्चर में। सोशल इक्विटी लाने की बात करो, क्लाइंट ओरिएंटेशन, चेंज ओरिएंटेशन, ये सब बात है ना? ठीक है, चलो। तो दोनों में अंतर, अब तीनों में अंतर पता होना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या हुआ कि तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एजेंसी है, वो भी चेंज हो रही है। वैल्यूज तो चेंज है ही, वैल्यूज तो इफेक्टिवनेस ले आओ, एफिशिएंसी ले आओ, ठीक है, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस ले आओ, प्राइवेट ओरिएंटेड गवर्नमेंट कर दो और इकोनॉमी पे ध्यान दो। यहाँ पर चीजें और जो बदल रही हैं कि रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ द बिजनेस इज एक्सेप्टेड, उनकी तरह बन जाओ। प्राइवेट सेक्टर, हाँ, प्राइवेट सेक्टर की तरह बन जाओ, कंपटीशन लेके आओ। ये क्या हो रहा है? कंपटीशन की बात कर रहे हैं, क्वासाई मार्केट की बात कर रहे हैं। क्या बताया मैंने? क्वासाई मार्केट, अर्ध मार्केट जैसा, ठीक है? कंपटीशन इन पब्लिक सेक्टर, कंपटीशन इन पब्लिक सेक्टर आएगा तो प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जाए, जहां पर चीजें लिबरलाइज नहीं की उसको लिबरलाइज कर दो। तो अगर एरोप्लेन, एयर ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं दी तो प्राइवेट सेक्टर को भी ले आओ। मैनेजरियलिज्म क्या है? क्या है मैनेजरियलिज्म? मैनेजरियलिज्म है बिजनेस लाइक ओरिएंटेशन ऑफ द पीपल हु आर हैविंग अ पावर और डिस्क्रिशन। अब उन्हें बिजनेस लाइक सोचना है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है। अगर मैं 10 पुलिस स्टेशन खोल रहा हूं तो उससे सरकार को कुछ फायदा हो रहा है नहीं, ऐसा, ठीक है? सो यही है जो अभी हमने जिक्र किया, प्रिंसिपल्स। सो फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। सिटीजंस का एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग बेटर सर्विसेज, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन का विकेंद्रीकरण हो रहा है। सारी पावर इज नॉट बीइंग कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, रादर इट इज नाउ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। मार्केट लाइक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? इसका प्राइवेटाइजेशन कर दो, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर दो, या फिर ऑल टुगेदर सेल आउट कर दो, इसे जरूरत ही नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, ये भी एक तरीका है। गोल ओरिएंटेशन है। गोल ओरिएंटेशन क्या है? गोल ओरिएंटेशन में बेटर सर्विसेज देना, बेटर सर्विसेज टू ट्रीट सिटीजंस एज कस्टमर्स। अब कस्टमर होगा तो क्या होगा? कस्टमर होगा मतलब उसके पास चॉइसेस हैं, मतलब वो चाहे तुम्हारे पास आए चाहे किसी और के पास चले जाए, ठीक है? ये है कॉस्ट कटिंग एंड फैसिलिटेट इनकम ग्रोथ। तो जो रिडेंडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है सर्विसेज, उनको क्या करना है? उनको हटा देना है, ठीक है, उनको हटा देना है। और मैनेजरियल सपोर्ट सर्विसेज, फीडबैक सिस्टम, ठीक है, फीडबैक लेना शुरू कर दो,
साथ में लोगों को एज अ कस्टमर चूज करो, और इसके अलावा टारगेट बेस्ड होना चाहिए, प्रोग्राम्स को टारगेट होना चाहिए। और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस से हम ला सकते हैं कि हर चीज़ को क्वांटिफाई कर लो। क्वांटिफाई करने का मतलब है टारगेट्स में, छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लेना। बेटर सर्विस टू द सिटीजंस। अब पहले केवल एक ही जल निगम का पानी आता है, ठीक है। अब इमेजिन करो जल निगम के अलावा 3 और प्राइवेट सेक्टर आ गए, टाटा आ गया, रिलायंस आ गया, अडानी पावर या अडानी ग्रुप, ठीक है। अब वो क्या करें कि हम भी सप्लाई करेंगे भारत के शहरों में पानी, हम भी अपनी प्राइवेट पाइपलाइन डालेंगे, जैसे उन्होंने पाइपलाइन केबल लाइन डालनी किसकी, इंटरनेट की डाली है ना, जियो है। हाँ जियो है और भी है, नीचे डाल लो, ऊपर एयरवेव्स के थ्रू ले आओ, ऐसे ही पानी को ले आओ। टैंकर सर्विस हम भी लाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी का पानी क्यों पी रहे हो, ऐसा पानी पियो जो कि टैप चलाते ही फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे जैसे यूएस या डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये यही है कि सिक्योर बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स, सिटीजन्स के लिए अच्छी सुविधाएं मिले, राइट, ओके। So new public management was formed in a protest. प्रोटेस्ट का है कि ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा पावर्स एक्यूमुलेट हो गई। ब्यूरोक्रेसी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होते होते क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत सारी पावर मिल गई। ध्यान रखना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं गवर्नमेंट का रोल नहीं बोला गया कि कम कर दो, बोला गया नहीं? हाँ, उसमें क्या किया है कि गवर्नमेंट को ज्यादा रेलेवेंट होना पड़ेगा, वैल्यू ड्रिवन होना पड़ेगा, इक्विटी वाला होना पड़ेगा, क्लाइंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, चेंज ओरिएंटेड होना पड़ेगा, यही तो है। इक्विटी, क्लाइंट ओरिएंटेड। अच्छा, लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। रेलेवेंट, दुनिया को चाहिए पानी, तुम दे के आ गए खाना, तो रेलेवेंट नहीं है ना। जैसे भारत जैसी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फिजिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर। साउथ इंडिया में अगर तुम कंबल बांटने चले जाओगे इस समय और सब गरीबों को कंबल बांट के आ जाओ, कुछ रेलेवेंस है उसका? कोई नहीं है रेलेवेंस। तो रेलेवेंट होना, वैल्यू वाला, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को इक्विटी, इक्वालिटी, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इन सब पे चीज़ों पे ध्यान देना। और चेंज ओरिएंटेड का मतलब है चेंज लाने की कोशिश करना, स्टेटस को नहीं, ओल्ड की तरह नहीं, ठीक है, ओके। सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोटेस्ट था, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ ही रहा है, गवर्नमेंट के फंक्शन बढ़ रहे हैं, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है तो वो एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट को तो चेंज करता नहीं है। गवर्नमेंट के पास और पावर, अब ब्यूरोक्रेसी कहेगी कि हम कैसे रिलेवेंट हुए, अपने को कैसे रिलेवेंट करें, वैल्यू बेस्ड कैसे करें, इक्विटी कैसे लाएं, चेंज यूनिटी कैसे करें, हमें तो और पैसा दो, और डिपार्टमेंट खोलो, और गाड़ियां लाओ, और थाने खोलो, और तहसील खोलो, और डीएम कार्यालय खोलो। पर बाद में जब देखा गया कि ये बिग ब्यूरोक्रेसी हो गई, फैट ब्यूरोक्रेसी हो गई, तो ये अपने आप में ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी टर्म यूज होता है। ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी मतलब ब्यूरोक्रेसी में सेल्फ सस्टेन कुछ बीमारियां हैं। वो क्या है कि वो चेंज ओरिएंटेड नहीं है, वो क्या है, वो स्टेटस कोइस्ट है, वो रेड टेपिज्म में है, घिरी हुई, ठीक। तो अब ये सब जब दिक्कतें थी तो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी को कट डाउन करना है, तो स्टेट की पावर को लिमिट कर दो। स्टेट पहले इतना फंक्शन कर सकती थी, अब उसको इतना फंक्शन दे दो, ठीक है। और इसके अलावा ये फंक्शन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट डोमेन में दिखा रहा है कि वी आर वर्किंग गुड। सो ये ऐसी चीजें, म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें गार्बेज कलेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, टिकट वेंडिंग, कंपटीशन ले आओ,
ठीक है, टिकट वेंडिंग जैसे काम, म्यूनिसिपैलिटी के काम जो जिसको हम कहते हैं कि नॉन स्ट्रैटेजिक डे टू डे, ठीक है, डे टू डे फंक्शन या हाउस कीपिंग फंक्शन, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है, रेलवे में चादर बदलना, ये सब प्राइवेट करते हैं। ये है स्टेट की। अब आपने क्या कर दिया, स्टेट को लिमिटेड कर दिया। अब स्टेट को लिमिट किया है तो इसका मतलब उसकी जगह पर कोई और आएगा। कौन आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर। इज दैट comprehensible? That it is being understood? Himani, Kaniz, are you able to understand? Yes, sir. Okay, fine. Right. So अभी हम ये देख रहे हैं कि लिबरलाइजेशन के जो इफेक्ट थे उस समय तक वो बहुत ज्यादा आपके डेवलपिंग कंट्रीज पे नहीं आए थे, ठीक है, पर हाँ कुछ चेंजेस हो रहे थे वेलफेयर कैरेक्टर ऑफ स्टेट में। तो अगर हम 70s की बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये सब डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं था उस समय, उसके बाद आता है, ठीक है, कि हाउ नेसेसरी अ कंप्लीटली न्यूलिबरल सिस्टम एंड एनपीएफ इज फॉर डेवलपिंग नेशंस। अब ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर यूएस में, यूके में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह क्या हो रहा है, एक चेंज लाया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी जा रही है। तो हाउ रेलेवेंट इट इज फॉर डेवलपिंग स्टेट, बिकॉज डेवलपिंग स्टेट में तो अभी बेसिक मिनिमम सर्विसेज भी नहीं आई हैं, बेसिक मिनिमम सर्विसेज भी नहीं आई है। क्या होता है बेसिक मिनिमम? हेल्थ, हाँ, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस, ठीक है। सो ये भी नहीं है। तो अभी से आप कह रहे हो कि मार्केट इकोनॉमी ले आओ यहाँ पर, तो ये क्या रेलेवेंट है? तो डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। इट इज़ नॉट देयर फॉर मेकिंग अ चेंज, इट इज़ देयर फॉर हैविंग रेवेन्यूज, ठीक है, एंड फिलिंग एंड हैविंग देयर अकाउंट बुक्स इन ग्रीन, नॉट इन रेड, राइट? So it is true that NPM has been able to free modern administration from lot of undue discipline, rigidity, red tape, sluggishness of bureaucracy, ठीक है। अभी इसको हम देखें कि अभी हम ये कह सकते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से भाई इनइक्विटी का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। जिनके पास पैसे देने को है, पे करने को है, दे कैन अवेल एज मेनी एज सर्विसेज, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो प्राइवेट जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, नॉन स्ट्रैटेजिक फंक्शंस हैं, उनको क्या कर रही है, वो आउटसोर्स कर दे रही है। सो देयर वुड बी कंसर्न फॉर द पुअर पीपल, ठीक है। सो ये तो डेवलप्ड स्टेट में भी है। डेवलपिंग कंट्री इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओवर देयर यू नीड गवर्नमेंट, बट स्टिल ऑन अ लार्जर पिक्चर इफ वी सी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन एबल टू bring in some change. People realize that there are some changes. Their work is being done on time. There is less amount of wastage, less amount of waiting period, less amount of bureaucratic hurdles, more professionalism in the bureaucracy and in the government, because they are facing the competition from the private sector. So these are the positives of new public management. Okay, so now this was about new public management. Then there was this new choice approach, public choice approach, ठीक है। अभी पब्लिक चॉइस अप्रोच में क्या है, हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को भी उसी में एक पार्ट मान सकते हैं। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या है? पब्लिक चॉइस अप्रोच इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का क्या है, मिक्सचर है,
पब्लिक चॉइस अप्रोच ये मानती है कि जो दो चीजों को मानती है, एक तो देयर शुड बी नो मोनोपोली इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द पीपल। क्या हो गया बताओ? ओके, सो पब्लिक चॉइस अप्रोच, ध्यान से सुन लो। पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या कहती है? दो चीजें कहती है इंडिविजुअल लेवल पे कि पीपल शुड हैव नॉन मोनोपोलिस्टिक एक्सेस टू द सर्विसेज। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? पहले बताओ मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? मोनो मतलब एक, ठीक है। अभी अगर तुम्हारे पास एक ही सुविधा है कि भारत में मारुति 800 ही मिलेगी गाड़ी, तुम जा रहे हो, उसके लिए लाइन लगी है, 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अभी गैस का सिलेंडर और चूल्हा तुरंत मिल जाता है ना। एलपीजी एरा से पहले 1-1 साल का वेटिंग पीरियड होता था, ठीक है, कई साल का वेटिंग पीरियड होता था। गैस का चूल्हा फिर नंबर आएगा तुम्हारा 3 साल बाद, तब गैस का एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ही एक वो है, क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, या गवर्नमेंट इज ओनली देयर एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी एजेंसी, वो क्या होगा फिर? उसमें रेड टेपिज्म होगा, डिलेज होंगे। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच ये मानती है कि पब्लिक के पास देयर शुड बी अ चॉइस वेदर दे कैन हैव फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स, राइट। सो नॉन मोनोपोलिस्टिक एक्सेस होना चाहिए, मल्टीपल एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वो अप्रोच मानती है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। अब इसका क्या मतलब है कि बेसिकली ये मानती है कि द ह्यूमन बीइंग्स, पीपल आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स। हर किसी को अपना प्रॉफिट गिनना आता है। पीपल आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर एंड पीपल हैव, ह्यूमन बीइंग्स एंड इंडिविजुअल आर रैशनल क्रिएचर। रैशनल है तर्क संगत। अगर वो तर्क संगत है तो ये चॉइस कर सकते हैं कि मुझे महंगा खरीदना है या सस्ता खरीदना है। थोड़ा सा महंगा खरीद रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल, वन हु हैज रैशनैलिटी टू टेक डिसीजंस, ठीक है। ये बात मान के चल रहे हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच वाले कि गवर्नमेंट की लोगों के पास, द पब्लिक, द सिटीजनरी शुड हैव अ पब्लिक चॉइस इन मेकिंग डिसीजन while they are trying to have access to the government services, right? So it deploys some behavioral assumption of economics to explain political phenomena. तो पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का क्या है? मिक्सचर है। वहां पर यह है कि एलोकेशन कैसे हो सकता है, बेस्ट पब्लिक गुड्स का और सर्विसेज का एलोकेशन सोसाइटी को कैसे बेस्ट हो सकता है ना। तो कैसे बेस्ट हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज होने चाहिए। इट अज्यूम्स दैट ऑल एक्टर्स, वोटर्स, टैक्स पेयर्स, इंटरेस्ट ग्रुप, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, ये सारे क्या कर रहे हैं? मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट को इन पॉलिटिक्स एज इन मार्केट प्लेस। तो हर कोई क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। लोग चाह रहे हैं कि सबसे सस्ते में हमें सुविधा मिल जाए। गवर्नमेंट चाह रही है सबसे कम इनपुट लगा के सुविधा दे पाएं। सिविल सोसाइटी ये चाह रही है कि सबको सबसे सस्ते में मिल जाए, गरीब लोगों को भी मिल जाए। इंटरेस्ट ग्रुप ये कह रहे हैं कि किसान, अगर वो किसानों के इंटरेस्ट ग्रुप हैं तो किसानों की बात करेंगे। अगर वो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट ग्रुप हैं तो वो कहेंगे कि हमें कम टैक्स देना पड़े और हमारी टैक्स माफी हो जाए। तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे ऑल आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स। ये एजम्पशन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल का मतलब है कि इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल डिसीजन अबाउट सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड्स। कि मुझे क्या चाहिए, कौन सी पार्टी को वोट करूं मैं,
कौन सी चीज़ खरीदूं, प्राइवेट सेक्टर से लूँ या पब्लिक सेक्टर से। सो कि इंडिविजुअल को पता है, ये वो रैशनल क्रिएचर है, तर्क है उसके पास, ठीक है, रीजनिंग है ना। In one word, sir, what we say methodological individual in one word. ये तो अपने आप में एक वर्ड है, रैशनल क्रिएचर, तर्क, ठीक है। और ये माना जाता है कि वैल्यूज ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजंस, ठीक है। ये भी है कि ये मान रहे हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और लोगों को वो वैल्यू मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से जो उनके लिए फायदेमंद है। और ये भी माना गया कि पब्लिक ब्यूरोक्रेसी क्या है, ईविल है, क्योंकि वो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट में बिलीव करती है। याद रहेगा ये वर्ड, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, सेल्फ एग्रेंडाइजिंग, AGGRAN, एग्रेंडाइज, DISE, डाइजमेंट, मतलब जो अपनी पावर बढ़ाता हो। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अभी हमारे पास छोटी कार है, बड़ी ले आओ, अभी हमारे पास 2 गनर है, 4 ले आओ, अभी हमारे पास 10 ऑफिस है, 25 कर दो। ब्यूरोक्रेसी की ये पावर होती है, ठीक है। वो सबसे पहले अपना सेल्फ देखती है, एक घर है तो 2 कर दो, अभी केवल 3rd AC मिलता है तो एयरप्लेन का बेनिफिट कर दो। सो ब्यूरोक्रेसी इज इविल बिकॉज इट सीक्स ओन सेल्फिश इंटरेस्ट और पब्लिक गुड को नहीं बढ़ाना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ब्यूरोक्रेट्स किसी भी देश के हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा, ब्यूरोक्रेट्स का ऑफिस सबसे महान, सबसे बड़ा, सुविधाओं के नाम पे बहुत सारी चीजें, अगर उतना ही क्या जरूरी है उतनी सुविधा लेना नहीं। अगर हम ये बात अगर गांधीयन प्रिंसिपल से देखें, सो दे आर सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी, बट पावर स्ट्रक्चर से देखें तो वो एलीट ग्रुप है, समझ में आ रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा यही चाहती है कि उसका होल्ड बना रहे। तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप ये नहीं चाहेगी कि उसकी पावर्स किसी भी 3rd ग्रुप के पास जाएं, प्राइवेट सेक्टर के पास जाएं, इंटरनली कभी नहीं चाहती है ब्यूरोक्रेसी। क्या उसके यहाँ क्या हो, प्राइवेट जैसी एजेंसीज के जो पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर आपको टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा, कभी नहीं चाहेगी ब्यूरोक्रेसी ऐसा रिफॉर्म होने ही नहीं देगी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वहां पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने लगेगी। खैर, तो अभी हम ये भी देखते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, तो वो क्या होगा, सबसे अच्छा हो जाएगा लोगों का इंटरेस्ट होने, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ चीजें हैं जो हम पब्लिक चॉइस में देख रहे हैं। और इंडिविजुअल इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल सिटीजन और उसके इंटरेस्ट को सुप्रीम मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और दिस सिस्टम अलाउस क्लाइंट्स इंटरेस्ट, क्लाइंट के इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, गुड्स और सर्विसेज में, कि क्लाइंट के लिए क्या जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि ऑथोरिटी का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। जहां पर भी ऑथोरिटी का कंसंट्रेशन होगा वहां अपने आप में ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज आएंगी ही, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स पैथोलॉजीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, स्लो डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, रेड टेपिज्म, लॉन्ग वेटिंग क्यूज, ठीक है। और इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन। जब कंपटीशन होगा तो इंडिविजुअल के पास ज्यादा चॉइसेस होंगी। अगर जियो 3G नहीं लॉन्च करता 2016 में, तो क्या हमारे पास इतना सस्ता इंटरनेट होता? नहीं होता, है ना। तो इंडिविजुअल्स को कैसे चॉइसेस बढ़ेंगी? इंडिविजुअल की चॉइसेस तभी बढ़ेंगी जब कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ब्रॉडर वे में अगर मैं कहूं, पब्लिक चॉइस अप्रोच, देयर शुड बी चॉइस विद द पब्लिक टू हैव पब्लिक गुड्स, ठीक है। नॉन मोनोपोलिस्टिक एजेंसीज, मोनोपोलिस्टिक एजेंसीज डीएम कार्यालय वहीं से सारा होगा। नॉन मोनोपोलिस्टिक जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करो, सिम तुम्हारे घर में ही पहुंच जाएगा। ICICI बैंक को कॉल कर दो, तुम्हारे घर में ही आ जाएगा। अमिताभ बच्चन का ऐड देखा है ICICI बैंक का, उसके घर में ही आ जाता है। अरे सर, और वहां पर हो जाता है, लाइन में खड़ा होता है, अरे सर अब तो हो गया, इसका प्रिंट आउट लाना था कि सर 5 बज गए।
तो जाओ। तो ICICI को एक फ़ोन करता है, घर में ICICI वाले आ जाते हैं, फोटो वोटो ले लेते हैं उसी समय, ठीक है। ICICI बैंक में जाओगे अगर आप, तो मैं गया हूँ, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी कराना है, अगर नो योर KYC नॉर्म्स भी कराना है, आपकी उंगली ऐसे दबाएगा, एक मशीन है उनके पास, ठीक है, आपका आधार लेगा, वहीं से सब कुछ हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ ठीक है, पर अभी वो सही है, पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो हमें दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। इसमें न्यू पब्लिक सर्विस और न्यू पब्लिक गवर्नेंस, नया पैराडाइम आ गया है, ठीक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज डेड, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया, अरे यार ये तो कोविड में केवल महंगे सिलेंडर बेचते हैं, कोविड में बेड बेच रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बेच रहे थे, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी सही नहीं है ज़्यादा। तो रेगुलेटरी मिक्स्ड चीज़ें सही हैं, और ये क्या होता है, ये एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है। जैसे ही लोगों को लगता है अरे ब्यूरोक्रेसी इज वेरी बैड, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, फिर प्राइवेटाइजेशन में भी क्या होता है, जो उधर लीड था उसको प्राइवेट लीड ने रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि इंडिविजुअल तो क्या है, मैक्सिमाइजर है, जैसे ब्यूरोक्रेसी सेल्फ एग्रेंडाइजिंग है, वैसे इंडिविजुअल भी अपना सबसे ज्यादा फायदा देखते हैं, है ना। तो अब वो देखें तो लोगों के में रोष आएगा कि नो, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, फिर वो लिखना शुरू करेंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन बंद करो कहेंगे। फिर लोगों को फिर पॉलिटिकल माहौल बनने लगेगा उसके खिलाफ, और पॉलिटिकल पार्टी खुद आके कहने लगेंगी कि नहीं हम तो बंद करेंगे, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम जो ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं बताओ, क्या है न्यू? ओल्ड पेंशन स्कीम्स क्या है? 2005 से पहले जो पेंशन स्कीम है सर, इसमें कुछ मिनिमम अमाउंट सर। चलो ओल्ड पेंशन स्कीम बताओ पहले क्या था। वहां पर यह था कि भैया जिसकी सरकारी नौकरी लग गई उसको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम। और न्यू पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट का है वो भी हिस्सेदारी होगी और आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, मंथली कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर मैं आज देखूं तो ये जो मूवमेंट्स हैं, या लोगों को फ्री का राशन, फ्री का बिजली, इसके ऊपर वोट पड़ रहे हैं ना। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनकी महंगाई इतनी हो चुकी है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आगे आके कुछ रोल वापस ले रही है अपने, कि हम जाके क्या करेंगे, सोशल सर्विस, ऐसे एटलीस्ट बेसिक मिनिमम सोशल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फ्री का राशन, फ्री की बिजली, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री की एजुकेशन, सब कर देंगे, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ सही कर रहे हैं। इसका मतलब लोग परेशान थे ना पहले सिस्टम से, ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन से होने से क्या हुआ है, जो सेफ्टी नेट है वो चले जाता है। सेफ्टी नेट क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेफ्टी नेट, है ना, वो उड़ गया। तो अब क्या है आपके पास चारा? अब यही चाह रहा है कि दोबारा से वो चीज़ों को लोग वोट करने लगे। जब वोट करने लगेगी तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी भाषा खुद बदल लेगी। ओके, तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाने की बात करती है, और इसके बाद डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज में। और ग्रासरूट लेवल पे एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो लोगों को एम्पावर करने की बात हो रही है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाने की बात हो रही है, ठीक। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। ये इसका भी दिक्कत है कि ये थ्योरी आपको रिसोर्स एफ्लुएंट एनवायरनमेंट में तो ठीक है, बट डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? पब्लिक चॉइस या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरह ये डेवलप सोसाइटीज में तो सही है, जहां पर आप ये मान रहे हैं कि बहुत सारे क्या होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। पर एक डेवलपिंग भारत जैसी सोसाइटी में ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब आप ये मान के चलेंगे कि पब्लिक सेक्टर में खराब था इसलिए आपने नए ऑप्शन लाए, तो इसका मतलब उस खराब के लिए हमेशा गरीब रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि गरीबों के पास पैसा होगा नहीं। और आप जब पब्लिक सेक्टर की कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। क्योंकि डेवलपिंग सोसाइटी में तो अभी हम बेसिक मिनिमम लेवल पे भी नहीं आए हैं ना, गरीबी इतनी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, वो क्या चॉइस अप्लाई करेगा? बीड़ी खरीदने के लिए क्या खरीदेगा उससे?
सिगरेट खरीदेगा, बीड़ी खरीदेगा, इससे ऊपर टॉफी खरीदेगा कि सरकारी टॉफी नहीं प्राइवेट टॉफी खरीदूंगा, ठीक है। उसके पास 1000 रुपए है ही नहीं यार, उसको तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अलावा कुछ कहीं इलाज करा ही नहीं सकता वो। 10 रुपए के पर्चे से ज्यादा वो दे ही नहीं सकता, 7 घंटे खड़ा जरूर रहेगा बेचारा लाइन में, ठीक है। तो ये जो पब्लिक चॉइस है ये भाई वहां पर चलता है रिसोर्स एफ्लुएंट सोसाइटी में, ठीक है। और क्या है ये भी सफल असफल बताने में रही कि इसका नेगेटिव जो पॉइंट है ये भी असफल रही बताने में, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच आर वेयर द ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग मोटिवेटेड बाय नॉन रैशनल या नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जैसे ग्रुप डायनेमिक्स है, ग्रुप डायनेमिक्स को आप क्या समझोगे, आप कहां रहना चाहोगे, आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं युगांडा में, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली में रहना चाहोगे या अपने घर में रहना चाहोगे, ठीक है, अपने घर के आसपास मतलब अपने एनवायरनमेंट में। अगर वो बहुत ज्यादा ही है कि वहां 25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तुम सजा काटने चले जाओगे 6 महीने की, यार चलो 6 महीने सजा काट लेते हैं, पर वहां मन नहीं लगेगा, है ना। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन रैशनली होती है, जो इमोशनल लेवल पे होती है कि भाई देखो यहाँ पर की गवर्नमेंट क्या है, सबको ट्रीटमेंट अच्छा देती है, गरीबों की भी क्या है न्याय की बात होती है। अगर कोई ऐसा राज्य है तो बहुत सारे लोग चाहे उनके पास कितना ही पैसा हो उसी राज्य में आके रहना चाहेंगे, क्योंकि दे ऑल्सो गेट इफेक्टेड बाय द इमोशंस ऑफ सर्टेन अदर ह्यूमन बीइंग्स। कुछ ऐसे भी होंगे मरे ये कहीं भी, हमें क्या है, उनको बहुत मजा आएगा ऐसी सोसाइटी में, ठीक है। तो वो उनको अल्ट्रा रैशनल बोल सकते हैं, पर जो नॉन रैशनल कंसिडरेशन है जिसमें ग्रुप है और कल्चरल एफिनिटी है, ठीक है, और कल्चरल एफिनिटी है, ग्रुप डायनेमिक्स है और सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी होती है। हर चीज पैसा नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है। किसी जगह पर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, अब जाओ तुम, ठीक है, यूएस में चले जाओ, चलो ठीक है, वहां रेसिज्म है पर तुम्हें इकोनॉमिक फैक्टर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, नहीं जाना चाहोगे, बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहेंगे कि भैया हमें नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है भेदभाव हो रहा है, राइट। सो ये चीजें करने में ये क्या रहा, कामयाब नहीं रहा। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में भी दिक्कत हुई। ये नॉन रैशनल फैक्टर्स क्या है, अगर ये मान रहे हो कि हर चीज रैशनैलिटी है, हर चीज मतलब इंडिविजुअल के पास सब कुछ है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल क्या है अपनी संस्कृति, अपने जैसे लोगों के प्रति भी क्या होता है भूखा रहता है। तो एलियन सोसाइटी में बैठा दिया, खूब पैसे मिल रहे हैं तो यू वोंट बी वेरी हैप्पी। एक कमरे में बंद कर दिया, 1 लाख रुपए महीना देंगे, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, खाना पहुंच जाएगा बर्तन पे रख के नीचे, कितने दिन रहना चाहोगे, नहीं रहना चाहोगे, है ना। सो अभी है क्रिटिकल थ्योरी और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या था कि जिस समय कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म यूरोप में फैल रहा है, ठीक, और उसको समझने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जो सिविल सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो बहुत इलिबरल हो गई है, लिबरल नहीं रही है। वहां पर लोग आपस में पैरोकियल माइंडसेट से, ट्रेडिशनल माइंडसेट से, प्राइमोर्डियल माइंडसेट से एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। उसमें लोग धर्म से, जाति से, ठीक है, कलर से लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसका, तो बेसिकली ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा लिबरल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, जहां पर मीडिया ने और सरकारों के इंस्ट्रूमेंट्स ने, बिग ब्यूरोक्रेसी बन गई है, वहां पर आई क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो उसने क्या कहा, इट ऑफर्स क्रिटिक of public institution and provide possibility for better future। तो उन्होंने क्रिटिक दिया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जिसमें गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ये सब उन्होंने क्या कहा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हैज ऑफन स्ट्रेयड अवे फ्रॉम नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये देखा कि पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार कि वो
वो नॉर्मेटिव कंसर्न्स जो हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से उससे अलग रहते हैं। जहां पर भी ज्यादा साइंटिफिक मेथड की बात आती है, जहां पर भी ये आता है कि एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक, एवरीथिंग शुड बी मेथड ड्रिवन, एवरीथिंग शुड बी रैशनल, वहां पर ये देखा गया है कि जो नॉर्मेटिव कंसर्न्स होते हैं, जैसे इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, एक्सेसिबल है या नहीं, अफोर्डेबल है या नहीं, कोई गरीब है, ठीक है, गरीब है और वो दिव्यांग है, आपने कह दिया कि हमने तो ये पानी की बोतल रख दिया यहाँ, जिसको आना है पानी पी लो। अब कोई दिव्यांग है और वो पानी की बोतल तक चढ़ ही नहीं पा रहा है, आपने तो क्या किया, लगा दिया ब्यूरोक्रेसी के रूप में, है ना। बट नॉर्मेटिव कंसर्न्स ये कहते हैं कि हमें ऐसा समाज बनाना है जो पीछे रहते हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन करना है, इक्वालिटी की बात लानी है, ठीक है, तो वैल्यूज की बात। तो वहां पर हमने देखा है कि साइंटिफिक स्टडी जो होती है उन्होंने ये दिखाया है कि इट डेमोस्ट्रेट्स होना चाहिए हैज ऑफन स्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मेटिव कंसर्न्स, ठीक है। अभी क्रिटिकल अप्रोच क्या कहते हैं, ह्यूमनाइज करने की जरूरत है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को, हर चीज में साइंटिफिक रैशनैलिटी का प्रिंसिपल लगाएंगे तो सही नहीं है, ठीक है, उसको ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। और क्या कहती है, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल था, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल जो जर्मनी में डेवलप हुआ स्कॉलर्स का, ठीक है, 1930s 20s के समय उन्होंने ये क्रिटिकल थ्योरी दी। और क्रिटिकल थ्योरी बहुत सारी चीजों के लिए, साइकोलॉजी के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखती है, ह्यूमनाइज मतलब मानवता वाले मूल्य लाना, दया भाव, ठीक है, एक समरूप रूप से देखना अमीर और गरीब को, ह्यूमनाइज। मैकेनाइज करना क्या होता है, मैकेनाइज करना होता है ज्यादा मशीन की तरह सोचना, साइंटिफिक। ह्यूमनाइज करना ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोचना, ठीक है। हाँ, सो ये थ्योरी है, सो ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी के बारे में बहुत सारे जो स्कॉलर हैं उनके में बहुत भेदभाव हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है विद इन दिस। पर जर्गन हैबरमास ये एक बड़े स्कॉलर हैं, ठीक है, और ये क्रिटिकल थ्योरी के बेस्ट नोन प्रोपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट हैं। इन्होंने सेलिएंट फीचर्स कुछ बताए, ठीक है, और सेलिएंट फीचर्स क्या है, जो स्टडी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। तो कौन इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट हुए, हैबरमास, ठीक है, जर्गन हैबरमास। तो इनको हम देख रहे हैं, ये क्या, इट इज अ पोस्ट वेबेरियन एंड पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट वेबेरियन का क्या मतलब है, पोस्ट मॉडर्न का क्या मतलब है। पोस्ट वेबेरियन का मतलब है वेबर ने क्या कहा था। अगर वेबर का, अगर मैं ये कहूं कि वेबर ने कहा कि सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और नहीं, उसने वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है मॉडर्न सोसाइटी के लिए, पर ब्यूरोक्रेसी में अपनी दिक्कतें भी हैं। तो वहां पर अगर वेबेरियन का टर्म यूज कर रहा हूं, मतलब रैशनैलिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो मैकेनिस्टिक है, मतलब जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, जिसमें हायरार्की है, वो सब ये है पोस्ट वेबेरियन, मतलब वेबर की सोच से आगे की। तो वो वेबर की सोच से आगे क्या होगा, जो ऐसी जो एक्यूमुलेटिव हो, जो रैशनल तो हो पर कलेक्टिव डिसीजन पे हो, जिसमें चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टॉप डाउन हो तो बॉटम अप भी हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जगह हो, नॉट ओनली वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चेन ऑफ कमांड वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो ज्यादा ऊपर से नीचे तक ये नहीं कि ऊपर वाले नीचे वालों को दबाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है कि हर चीज की एक फैक्ट है और वो सबके लिए सेम फैक्ट है, ये है मॉडर्निज्म। पर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, वो कहता है नॉलेज जो है वो उसको हमें जो व्यक्ति है उसके पर्सपेक्टिव से देखना है, और नॉलेज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों, जैसे किसी ने कहा सूरज ईस्ट में उगता है, ठीक है, अब मैं चला गया सैटर्न पे,
ये ईस्ट वेस्ट में इंसानों ने बनाया ना, सैटर्न पे कहाँ से होता है? वहाँ तो ग्रीनविच लाइन है नहीं। फिर तो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो भी स्टेटेड फैक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, उनको चैलेंज किया जाता है। हाँ अनुज, बहुत देर से आए हो, कहाँ रह गए थे भाई? यही है, और क्लास में क्यों नहीं आए हो? अच्छा, आज क्या है, त्योहार है कोई घर पे? तबीयत खराब हो गई है, थकान हो गई है, जुकाम हो गया है? अच्छा, नॉट इन दिल्ली, चलो ठीक है। फिर कहाँ पर हो तुम? जहाँ पर भी हो वहाँ से 2-4 चीज़ देख के आना जो बताओ तुम। नेशनल हाईवे का नंबर देखा क्या, कौन सी खेती हो रही थी ये बताना, ठीक है? वहाँ जो भी तुमने ऑब्जर्व किया आके बताना क्लास में। ओके, सो क्या देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट वेबेरियनिज्म, ठीक है, वेबर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आगे की बात कर रहे हैं और पोस्ट मॉडर्न से भी आगे, मॉडर्निटी से आगे। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि कपड़े वैसे पहन लिए, मॉडर्निज्म कुछ और है यहाँ पर, कि कोई भी फैक्ट है वो पूरी तरह सही नहीं है, उसको अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना है। जैसे लोगों ने कहा एक तो मैंने वो एग्जाम्पल बता दिया आपको ईस्ट वेस्ट, लोगों ने कहा कि मोनोगैमी सबसे बढ़िया है। मोनोगैमी मतलब एक पत्नी एक पति वाला परिवार, पर बहुत सारी सोसाइटीज में पॉलोगैमी होती है। मैं जानता हूँ जैसे उत्तराखंड में जो जौनसार वाला इलाका है, जौनसार भाबर है, वहाँ तो पॉलीगैमी है। यहाँ तक कि जो कौन सी ट्राइब को अभी हिमाचल प्रदेश में एसटी ट्राइब का दर्जा मिला है? सती। कोई बता सकता है वो नाम आप में से? हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब को चुनाव से थोड़ा सा पहले आपके ट्राइब का दर्जा मिला था? ऐसे शायद नाम है उसका, नहीं पता आप लोगों को? अरे आप लोगों को तो पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। चलो खैर, ऐसे कुछ नाम याद आ रहा है मुझे। खैर, उनमें भी बहुपत्नी विवाह की वो है। अब ये जो नॉलेज है, बहुपत्नी मतलब जिनके बहु मतलब एकल से ज्यादा, मल्टी, पॉली, ठीक है, पॉलीगैमी। अब इसको आप कैसे देखते हो, कौन सा सही है? भाई उनकी अपनी मान्यताएं हैं, सो कोई भी एक जो थॉट है वो सही नहीं है। मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म इसी की बात करता है। नहीं, स्वांगला ऐसी कोई नहीं है, ठीक है, चलो तुम्हें नहीं पता है, पता रहना चाहिए ये सब, ठीक है। अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। बेसिकली हट्टी कम्युनिटी, हट्टी थे ना, HATTI, हट्टी कम्युनिटी है वो, हाँ। और एक और कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में दिया था थोड़े दिन पहले, पहाड़ी कम्युनिटी, हट्टी कम्युनिटी। तो वहां पर भी है हट्टीज ऑफ, यूट्यूब पे जाके देख लेना, हट्टीज ऑफ हिमाचल। वहां बहुपत्नी पॉलीगैमी की क्या है, विवाह का एक एक्सेप्टेंस है, अ सिस्टम ऑफ मैरिज विच इज पॉलीगैमस इन नेचर, दैट इज देयर, राइट। सो हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द पीपल। सो पोस्ट मॉडर्निज्म कोई भी एक कॉन्सेप्ट को सबको थोपने से मना करता है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू पीपल रादर देन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, इनकी जगह वो लोगों को ज्यादा तवज्जो देता है। समझ में आया भाई? आप लोगों को समझ में आया? हाँ, सिरमौर, ये तो सही लिखा है आपने अनुज, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हट्टी कम्युनिटी। हाँ जी, हिमानी और कनीज आपको समझ में आया? अनुज समझ में आया? पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट वेबेरियन का क्या कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं? ओके, ठीक है, ओके। सो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की जगह पोस्ट मॉडर्निज्म में पीपल को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है,
ठीक है? Yes, sir. So Habermas, like Weber, give reference to technical nature of organization and technical efficiency. ये बताते हैं कि Habermas भी यही कहते हैं कि ये बहुत technical nature है, bureaucratic nature है, अच्छा नहीं है. Societies are getting highly bureaucratized. Social power and discretion get concentrated in the hands of few people. कि जो सोसाइटी है जैसे जैसे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे दैट इज गोइंग टूवर्ड्स the modern era, it is becoming highly specialized services, and due to that bureaucracy is having lot of power. Few selected people are having lot of power over people, general people. अब क्यों कौन कानून बना रहे हैं? वही लागू भी वही कर रहे हैं, सजा भी वही दे रहे हैं. थोड़े से लोगों में ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ पावर गलत है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है. स्ट्रक्चर्स की जगह लोगों के पास पावर होनी चाहिए. ये बात समझ में आया? ब्यूरोक्रेसी है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है. क्या मतलब होता है इसका? सर ऊपर से सेंट्रलाइज का मतलब जिसके पास बहुत सारी पावर होती है. सेंट्रलाइज, सेंटर, सारी पावर इसको दे दो तो सेंट्रलाइज है. अगर पावर ऐसे बांट दोगे तो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज. जब सेंट्रलाइज हो गई, इमेजिन करो कि ये एक बिंदी 1000 लोगों को दिखा रही है, ठीक है? और ऐसी करोड़ों बिंदी है यहाँ पर सारी पावर इनके पास है, और ये बिंदियां बिना डॉट्स है, ये बिना पावर के हैं. तो अब इसका मतलब है दिस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, राइट? दिस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड. ओके, सो ब्यूरोक्रेसी अपने आप में क्या है? बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, और उनके पास डिस्क्रिशन बहुत है. कोई पावर को एक्सरसाइज करने की चॉइस, डिस्क्रिशन, विवेक शक्ति बहुत ज्यादा है. ठीक है? तो ये सही नहीं है. ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन raises concerns over social role of bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी का जो सोशल रोल है वो कई जगह पर प्रभावित कर रही है. ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ओनली सर्विंग पीपल बट इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग वैल्यू सिस्टम टू द पीपल. अब जैसे तुम देखो, ये जो यूपीएससी की तैयारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं उसको देखते ही लोग एप करना चाहते हैं. ठीक है? अगर मैं मानूं कि ब्यूरोक्रेट से सारी गाड़ियां ले लो, बड़े बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस में बैठा दो, 90% लोग तैयारी छोड़ के भाग जाएंगे, 99 भाग जाएंगे. मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इसीलिए तैयारी करते हैं कि आई वांट टू चेंज इंडिया. नो, दे वांट टू चेंज देयर लाइफ. सिंपल है. ठीक है? ये है ही. तो अभी क्या है कि सोशल रोल जो है ब्यूरोक्रेसी का बहुत बढ़ गया है. उस समय की बात कर रहे हैं हेबरमास 1930s 20, और लोग जो हैं वो क्या है, एक तरफ हो गए. सो सर्च ऑफ एफिशिएंसी की वजह से रिजिडिटी आ गई है, डीपर्सनलाइजेशन हो गया है. अगर सोसाइटी में ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर भी रिजिडिटी आ गई है. इतने समय आओ, इतने समय जाओ. अरे तुम इससे इधर को क्यों देखा? तुम सामने क्यों नहीं देख रहे थे? तुमने इधर को क्यों देखा? तुमने उससे बात क्यों करी? तुमने क्यों पूछा कि उसकी तबीयत सही है या नहीं है? कैमरे में देख रहे हैं हर समय. तो ये क्या है? ये तो रोबोट बनाना है ना. रिजिडिटी आ रही है. तो इसकी वजह से समाज में, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में, वन पर्सन वाज depersonalized from the other person. Human being has been dehumanized, depersonalized. उसके पास पर्सनल कुछ नहीं रह गया है. वो आता है, रोबोट की तरह काम करता है, चले जाता है. उसका डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है. कौन किसके पास डिस्क्रिप्शन है? ब्यूरोक्रेट्स के पास. वो बता रहे हैं कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ऐसे ऐसे ये होना है. सो हेबरमास इसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड. The too much of concentration of power in the few hands is not good. Right? So, order, control, efficiency, predictability are themes जो कि हम we see in the literature of public administration. हम public administration की literature में यही बार-बार देखते हैं. Order, efficiency, economy, effectiveness, control, predictability, है ना? और जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आइडियाज का एक्सचेंज है, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल्स का, ये रुक गया है किसी भी सोसाइटी में, जो ओवर ब्यूरोक्रेटाइज हो जाती है. और टोटल एलिमिनेशन हो जाता है वर्कर्स का वन टू अनदर. आप कोई मर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके, क्योंकि आपको तो 70 पीस 1 घंटे में देंगे. कोई मर भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है. हैं? जो हाईली रिजिड सोसाइटीज होती हैं, जिसमें हम भी रहते हैं,
वहाँ पर क्या होता है, जब कोई मृत्यु हो जाती है तो लोगों को शोक मनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑफिस में सही समय पर पहुँचना है। ठीक है, तो वो क्या है, शोक मनाने के लिए, शोक मनाना और खुशी मनाना एक इवेंट है। उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं कि आओ चलो खुशियाँ मनाने चले, क्योंकि लाइफ में कुछ खुशी नहीं है। बर्थडे है ही ठीक है, हम फोटो खिंचवा रहे हैं और जल्दी चलो यार ट्रेन छूट जाएगी, जैसी फोटो से अलग आए ट्रेन छूटने की चिंता हो गई। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कि इमोशंस आर नाउ इवेंट्स। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो टोटल एलिमिनेशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है, अगर बिजनेस में भी बात करें, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को देखें या सरकारों को देखें, तो क्लाइंट को जो भी कस्टमर है, उनका क्लाइंट है, उसको वो सोचते हैं बर्डन। अरे यार ये फिर आ गया, ये तो इसको क्वालिटी का बहुत कंसर्न है, इसको दिया तो था, इसको समझ में ही नहीं आता। ठीक है, और लोग क्या कहते हैं, अरे यार बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा ले लिया हमारा, हमें प्रोडक्ट नहीं दिया, सही से सर्व नहीं किया। ठीक है, तो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन और जो उनके कस्टमर बेस है या क्लाइंट बेस है, उसमें भी क्या है, एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन आया समझ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रन काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक पब्लिक सर्विस। जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो डेमोक्रेटिक पब्लिक सर्विस से भी विचार से दूर भागती हैं। इसका मतलब है दे आर मोर कंसर्न विद रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस, उचित माध्यम से। ठीक है, बाय प्रॉपर चैनल, नॉट फॉर द पीपल, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सुनते होंगे ना आप, नियम अनुसार कार्रवाई करें। नियम में लिखा है कि मरते हुए आदमी की तरफ कोई मत देखना, तो नहीं देखेंगे। नियम में ये लिखा हुआ है कि 6 साल से सिद्धार्थनगर में एक बुजुर्ग आ रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, और जाके तहसील में ही मर गया, फिर वो नियमों में होना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे केस हैं, तो यही ब्यूरोक्रेसी है। सो इट इज मोर रिजिड, more control, or it organization run counter to the principle of democratic public service, जहां पर लोगों का भी भागीदारी हो, जहां पर शासन करने के लिए आप सेवा के लिए आए हैं, ना कि राजा बनने के लिए। तो ये हैबरमास कह रहे हैं, ये है आपकी क्रिटिकल थ्योरी इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब देखो हम आगे जो बढ़ रहे हैं, अब हम और आगे जब बढ़ रहे हैं, देखो पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या कह रही है। पब्लिक चॉइस थ्योरी ये कह रही है कि पीपल वुड हैव लॉट ऑफ चॉइसेस in choosing from among the available options। ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, और इंडिविजुअल के पास पूरी रैशनैलिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो वो कह रही है, पर इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, वो ये है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनके पास केवल इकोनॉमी से नहीं नाप सकते हम उन्हें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप चॉइसेस की बात कर रहे हैं वो डेवलपिंग सोसाइटी में लागू नहीं होती। क्रिटिकल थ्योरी, ये तो हो गया पब्लिक चॉइस। क्रिटिकल थ्योरी क्या कह रही है, क्रिटिकल थ्योरी भी कुछ ऐसा कह रही है। क्रिटिकल थ्योरी ये कह रही है कि आपके पास जो लोग हैं वो क्या होंगे, मॉडर्न सोसाइटीज में अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास बहुत पावर आ गई है। ठीक है, तो अब क्रिटिकल थ्योरी कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत पावर है, और पब्लिक चॉइस कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी के पास जो पावर है वो अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एटलीस्ट इकोनॉमिक टर्म्स में। क्या इससे कुछ समझ में आया? हाँ, ठीक है, तो क्रिटिकल थ्योरी इज क्रिटिकल अबाउट टू मच ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इट इज क्रिटिकल अबाउट द dehumanization, de-individualization of a human being in modern organization. It is saying too much of concentration of power and discretion in the hands of few of the bureaucrats run opposite to the democratic principles. Right? This is it.
And critical and public choice theory is saying public, individual and everybody is within the political system and economical system is having self-centered goals. And since human beings can think about the better of themselves, let us give them choice. So they can have private sector, they can have public sector. Let me just wait for Himani. She is typing some question she wants to ask. Sir, can we say that both are taking about giving more power to the people? Yes, both are talking about giving more power to the people. Definitely, that is true. One is yes, Kaneez. So we can also assume that so it is the bureaucracy. It is the reason that to privatization, that it is the bureaucratic only. That's where privatization comes up. Okay, the question is not clear to me, but let me tell you. You said about two things: bureaucratization, or the bureaucracy and the public sector comes in. So, over bureaucratization leads to searching for another means of having access to suvidha ya services. Definitely, whenever there is over bureaucratization, over concentration, people will always want to think about something else they can have. Kaneez, am I able to give a reasonable feedback to you on this? Over bureaucratization. Sir, I mean to say that, sir, I'm audible or not, sir? Yeah, you are audible. Please go ahead. Sir, I mean to say that, government are interested in privatization because it is the reason of behind this that the slow motion of the bureaucratic, sir. Because whenever I went to one office where due to bureaucratic role, so it depends on bureaucratic role. If it depends on bureaucratic role, sir, then it becomes time spending. Yes, bureaucracy has some pathologies. ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपनी बीमारियां होती हैं. क्या है वो? रेड टेपिज्म, स्टेटस क्वो, ठीक है, इनर्शिया, एवर्स टू चेंज मतलब चेंज नहीं होना चाहती. ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां भी वेबेरियन टेंडेंसीज है, या वेबर के टर्म में जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है या ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है. अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप सेकंड यूनिट में ब्यूरोक्रेसी को, वेबर की ब्यूरोक्रेसी को समझोगे, ठीक है. पर आप अभी ये मान सकते हो, जब भी हम वेबेरियन बोल रहे हैं किसी चीज को, तो वेबेरियन हम वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी मतलब एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की छवि बताई थी या क्वालिटीज बताई थी, उनकी बात कर रहे हैं. जब भी वो ज्यादा होंगी तो पीपल विल लुक आउट फॉर समथिंग, एंड प्राइवेटाइजेशन इज वन ऑफ द आंसर टू दैट. There are many other answers also, जैसे न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक गवर्नेंस जो अभी हम पढ़ेंगे, राइट. आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट, राइट. सो अभी देखो पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम्स और अप्रोचेस. सो अभी आप क्या देख रहे हो? एटलीस्ट आपको ये तो क्लियर हो गया है कि भाई ब्यूरोक्रेसी अपने आप में ऐसा नहीं है, हमेशा सेम रहती है. या गवर्नेंस क्या होता है? ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तुरंत न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, प्राइवेटाइजेशन. अब इसके वापस आएंगे. जब प्राइवेटाइजेशन देख लिया लोगों ने, तो अब क्या होगा कि वो कहेंगे अरे यार भैया ब्यूरोक्रेसी को लाओ, कंट्रोल्ड वे में लाओ. एटलीस्ट कोर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डन बाय द ब्यूरोक्रेसी, या कोर कंसर्न्स of the public services should be done by the
by the organization which are owned by the state. स्टेट और नॉन स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट मतलब राज्य के द्वारा, नॉन स्टेट मतलब राज्य के द्वारा जो नहीं है। जैसे मिस्टर अंबानी और अडानी, दे आर नॉट स्टेट, ठीक है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे ऑल आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्किल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट है। अब ग्रेड अप आता है, तुम्हारे यूट्यूब पे ऐड आता होगा, ग्रेड अप, ठीक है। अभी अपग्रेड या कुछ करके आता है, ठीक है, स्किल्स के बारे में। वो कहता है अरे भैया मैं तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और मैंने ना कोडिंग सीख ली और मैं अब टॉप हो गया हूँ। ऐसा देखा यूट्यूब पे जब चलाओगे तो आता रहता है। वो प्राइवेट स्फीयर है। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हो रही है। इनके बीच में ही क्या है, आपस में एक इंटरप्ले है, राइट। ओके, अभी ये बताओ कि आर यू रीडिंग द बुक्स ऑल्सो? ठीक है, तो हाँ, आर यू गाइज ऑल्सो रीडिंग बुक्स, योर मदर बुक्स? दिखाओ। तो इसमें पढ़ रहे हो? स्टार्ट कर दिया, एक यूनिट उड़ गई है और बड़ी यूनिट है ये, ठीक है। इनको पढ़ लो भैया। पेन में कहीं चला हुआ दिख नहीं रहा है मुझे, पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ो। वहां पर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। सर आपको मेल नहीं है तुम्हारे पास? लो मेल लिख लो मेरा। ई है शेखर डॉट लूटस, PLUTUS लूटस, अरे यार एक मिनट दोबारा से लिखा, SHEKHAR, ठीक है, डॉट PLUTUSIAS@gmail.com, @ का साइन दिया, ठीक है। तो ये है। इस पे कभी तुम्हें बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक स्क्रीनशॉट लो, उसका अटैच करके पूछ लो, अंडरलाइन करके कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दो, ठीक है। तो आई विल टेल यू, ये पॉइंट डिस्कस करने थे। 6 कौन सा पॉइंट है? विच पॉइंट? टेबल नंबर 1। अरे अभी तो आए ही कहां है 6 पॉइंट पर भी, हमें तो डिस्कस करने था, तभी तो तुम डिस्कस करोगे, ठीक है। अभी कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि हमेशा द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्रॉब्लम्स हैव बीन चेंजिंग, पीपल आर डिमांडिंग एंड सो इज द चेंज इन द सॉल्यूशन। So how can, जैसे एक ये पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम्स और अप्रोचेस। तो प्रॉब्लम क्या है, अप्रोच क्या है और मेन एक्शन पीरियड किस समय पे, क्या किस समय पे कैसी गवर्नमेंट रही है। So how can we put government on an orderly and efficient footing? Go. डिसऑर्डर था 1947 में, देश आजाद हो रहा था, तो डिसऑर्डर था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे धर्म की वजह से, खाने को कुछ नहीं था। दिल्ली में पंजाब से आने वाले लोगों का अंबार लगा हुआ था, कोई कह रहा है, रामपुर का नवाब कह रहा है मैं तो अलग हूँगा, निज़ाम कह रहा है मैं तो अलग हूँगा हैदराबाद का, फिर वो गुजरात में अलग कह रहा है कि मैं भी अलग हूँगा, कश्मीर वाला नहीं मान रहा है,
छोटे छोटे राजा भी कह रहे हैं हम तो बहुत बड़े डॉन हैं, ठीक है, खाने को लोगों को कुछ है नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, हमें लूट लिया है, तो उस समय क्या था, ये प्रॉब्लम है। तो वेबेरियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, इसको ये बेसिकली एक रिसर्च पेपर में था, वो सिंगापुर के मॉडल पे था, पर ये हमारे यहाँ भी लागू होता है। 1940-50 में ऐसा रहा होगा, ठीक है, और ये सारे ऐसे हमारे ही यहाँ फिट होंगे ऐसा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि वेबेरियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत रूल बाउंड होगा, रिजिड होगा। 1950 की ब्यूरोक्रेसी समझो है। आज तो तुम जाके डीएम साहब का वीडियो बना लेते हो, उस समय डीएम साहब के पास जाना मतलब भगवान के दर्शन कर लेने, ठीक है, और ऐसे ही रहे होंगे ब्यूरोक्रेट्स भी उस समय, ठीक है, कि हम तो चाय पियेंगे तो लंदन की चाय पियेंगे, ठीक है, 30 चाय नॉट गुड, ठीक है, ऐसे वाले रहे होंगे, है ना, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। सो हाउ कैन अ गवर्नमेंट कम क्लोजर टू द ग्रासरूट? अब ये है कि फुटिंग मिल गई, नई गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, अब गवर्नमेंट ग्रास रूट्स के पास कैसे आ सकती है? ग्रास रूट्स का मतलब क्या है? घास और उनकी जड़ें, ठीक है। तो भारत में ही 1952 से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आ गई, 1977 में अशोक कुमार मेहता कमेटी आ गई। तो गवर्नमेंट तो लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ नहीं है शासन। शासन कहाँ है? गाँव में, जहाँ पर जरूरत है लोगों की, नॉट इन दिल्ली, मुंबई, ठीक है। सो क्या अप्रोच लगाएगी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। भारत में भी विकेंद्रीकरण हो ही रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमली जामा पहनाया वो तो 1992 में है, 1973-74, पर क्या उससे पहले कुछ नहीं हुआ? हुआ है। लगातार डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, लगातार पावर लोगों तक, ग्रास रूट्स तक पहुंचे, इसकी बात हो रही है। तो 1970s मान लो अभी भी हो रही है, प्रेजेंट में भी ये चल ही रहा है, 1950 मान लो भारत में लगातार चल रहा है। और जब से 1990s में ये जो 73rd-74th अमेंडमेंट आया, उससे ये तेज हो गया। तो अब आज के किसान, आज के ग्राम प्रधान की भी बहुत ज्यादा क्या है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। वो जब डीएम के यहाँ भी जाता है तो अपना साफा पर लपेट के जाता है, मस्त एकदम, स्कॉर्पियो से आया हुआ होता है, पीछे लिखा होता है ग्राम प्रधान, सरपंच, देखा होगा ना तुमने। उसके पास भी वो भोंपू होता है, टॉ 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 करते जा रहा है, लोग डर रहे हैं भैया कौन आ गया, कि अरे ग्राम प्रधान है, ठीक है। तो ये चल रहा है। हाउ कैन वी मेक गवर्नमेंट मोर अफोर्डेबल? सो अफोर्डेबल का मतलब है, अब ये हो गया कि गवर्नमेंट होगी बिग, तो इसमें एनपीएम जैसा कुछ ले आओ। अफोर्डेबल नहीं है ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं रही है, महंगी हो रही है, तो लोगों को क्या चाहिए? सस्ती सर्विस चाहिए, बेहतर सर्विस चाहिए। तो पे और एम्प्लॉयमेंट का रिफॉर्म ले आओ, प्राइवेट सेक्टर को जगह देने लगो। 1980s 90s में ऐसा कुछ कहा। ये जो टाइमलाइन है, ये जरूरी नहीं है आपके देश से लागू हो सारी की सारी, ठीक है। मैंने बताया कि सिंगापुर के बारे में जाते हैं। तो हाउ कैन वी मेक गवर्नमेंट परफॉर्म बेटर एंड डिलीवर टू आवर की ऑब्जेक्टिव्स? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 1980s के दौर से शुरू हो गया था, रीगनिज्म और थैचरिज्म। कौन थे थैचर और रीगन? कौन थे थैचर और रीगन? आप लोगों ने देखा नहीं है लेक्चर? हु वाज थैचर? मैंने अभी 2 पॉइंट बोले न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, रीगनिज्म, थैचरिज्म। बताओ जरा कौन थे ये लोग? रोनाल्ड रीगन, राष्ट्रपति अमेरिका के, और मार्गरेट थैचर कहां की थी? मार्गरेट थैचर यूके, है ना। तो मैंने बताया, जब मैं वहां से लेक्चर ले रहा था, मैंने शब्द बोले हैं, थैचरिज्म, रीगनिज्म, रोनाल्ड रीगन, हाँ यूके, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर शुरू किया और फिर ये दुनिया भर में फैलने लगा, है ना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ओके, हाउ कैन वी मेक गवर्नमेंट मोर ऑनेस्ट? इंटीग्रिटी और एंटी करप्शन रिफॉर्म्स लेके आए, दुनिया भर में आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। हाउ कैन वी मेक गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू सिस्टम, टू सिटीजंस? हम गवर्नमेंट को ज्यादा जो सिटीजंस हैं उनके प्रति जवाबदेही कैसे बना सकते हैं? मीन्स आंसरेबल। सो बॉटम अप रिफॉर्म्स। व्हाट इज टॉप डाउन और बॉटम अप? टॉप डाउन ये होता है, यहां से घड़ा है, इसको गिरा दिया, यहां पर लोगों को मिल गया पानी, पानी मिल गया, बॉटम
टॉप डाउन, टॉप डाउन, ठीक है। Schemes मतलब स्कीम्स हो गए, सेंटर से पैसा आना, डायरेक्टिव्स आना सेंटर से, हर कानून सेंटर में बनना, टॉप डाउन। कानून बन रहा है घसियारों के लिए, बनाया जा रहा है जिन्होंने आज तक घास नहीं देखी, वो जो रहते हैं एसी में। भारत में जो कृषि के लिए कानून बनाते हैं और कृषि के लिए जो चीज़ें करते हैं, वो कभी खेतों में गए नहीं होते हैं। वो साइंटिस्ट की सुनते नहीं है, ब्यूरोक्रेट है भाई, ठीक है, पावरफुल लोग हैं। साइंटिस्ट कह रहा है ये होना चाहिए, कह रहा है निकलो यहाँ से, ठीक है, तुम जाओ, हमें पता है। तो एसी कमरों में रहने वाले और पावर सर्कल्स में घूमने वाले, जिनके पैरों में कभी धूल नहीं लगती है, वो बना रहे हैं गोवर्धन योजना, ठीक है, या गौपालन योजना। तो फेल होनी ही होनी है। अब उसमें अगर फेल नहीं होनी है तो आप ग्राउंड से लोगों को लेके आओ, आप एक ऐसी गवर्नेंस मॉडल लेके आओ जो इंटरलिंक्ड हो, एक कम्युनिटी बनानी चाहिए सर जिसमें कि हाँ। और हम ऐसा क्यों मानते हैं, देखिए समस्या ये है कि हम ये मानते हैं, अरे जैसे आप ही लोग हो या हम सब लोग हैं, अगर गांव से कनेक्ट नहीं है, अरे बेचारे करें किसान, वो भोले भाले किसान, ऐसा कुछ नहीं है, किसानों को खूब पता है चीज़ें, ठीक है। पर आप ऐसे सॉल्यूशन बना के देते हो कि वो बेचारा लगा नहीं सकता। 4 बीघे जमीन है, आप कह रहे हो ड्रिप इरिगेशन, सोचो ड्रिप इरिगेशन कितनी बढ़िया चीज़ है, तो किसान क्यों नहीं लगा लेते हैं सारे, सोचा कभी? अरे नॉलेज भी मिल जाएगी भाई। एक खेत 1.5 बीघे का वहाँ है और दूसरा 1.25 बीघे का खेत उधर है, बीच में चकरोड है, किसी और का उबड़ खाबड़ है। रात को ड्रिप इरिगेशन लगाया तुमने, रात को तुम्हारे बगल वाला आके सारे पाइप खोल के ले गया, कबाड़ी को बेच दिया 20,000 में, जो लगा था 5 लाख में। अब क्या करोगे ड्रिप इरिगेशन? यहाँ तक कि किसान गेहूं के अगर खेत है, कोई किसान पपीते का पेड़ नहीं लगाएगा वहां पर, वो जो गेहूं के खेत है वो उखाड़ के ले जाएंगे, गिरा के चले जाएंगे, काट के चले जाएंगे, इतनी जलन है, ठीक है। तो खैर, सो कैन वी मेक गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल? हाँ, बॉटम अप रिफॉर्म्स लाइए, बॉटम अप मतलब लोगों के द्वारा रिफॉर्म्स लाइए, जो लोग चाहते हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स रहा है। हाँ जी मिस्टर अनुज, 6 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बताइए आपके क्या इसमें विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बॉटम अप रिफॉर्म मतलब लोगों के द्वारा नीचे से लाए गए। जैसे एक आंदोलन होता है भारत में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के, कौन सा आंदोलन था? शेखर पाठक ने अभी एक बुक लिखी, उनकी बुक्स पब्लिश हुई है। हिमानी आप बता सकती हैं? चिपको आंदोलन बॉटम अप है, सरकारों को नहीं पता है, लोगों ने कहा कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे, तो एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बाहर चल पड़ी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉटम अप। चिपको आंदोलन क्या है? बॉटम अप किसी सरकार ने थोड़ी कहा था, सरकार ने तो पेड़ काटने के लिए ठेकेदार भेज दिए थे, लोगों ने विरोध कर दिया, तो ये बॉटम अप होता है। जैसे तुम्हारे गवर्नेंस से संबंधित नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूं, जो फैशन होता है, फैशन, अमीर लोग, एलीट लोग फैशन को पहले पकड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है, तो ये ट्रिकल डाउन या टॉप डाउन है। कुछ फैशन में भी ऐसे होते हैं जो डाउन से ऊपर जाते हैं, जैसे हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी जानते हो? 1970 में दम मारो दम मिट जाए गम वाले गाने, हरे कृष्णा हरे राम, देखे हो हिप्पी अंग्रेज टाइप के, ठीक है। वो भारत आते थे और उन्होंने क्या टैटू बनवाना शुरू किया। तो तुम्हें देखता होगा आजकल तुम्हारे भाई बहन टैटू बनवा के घूमते हैं बहुत सारे। वो कहाँ से आया? वो ट्राइबल लोगों की से आया, ट्राइबल आर्ट, जिनके पास पढ़ने को नहीं था, उनको चाहिए था साइन कि हम कहीं खो ना जाए। यहाँ लिखा हुआ देखा होगा ना, एटलीस्ट पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में उनके नाम, क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। सो ट्राइबल आर्ट केम फ्रॉम द पीपल हु आर एट द बॉटम, दिस इज बॉटम अप, राइट? एंड all other fashions, suit or ये सब whatever, right? It comes from the top to goes to bottom. That is the top bottom. Yes. Where is Mr. Anuj? Are you clear on that?
ऐसे बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं भारत में, बहुत सारे यात्राएं हुई हैं, बहुत लोगों ने करे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ तक कि आप में से किसी ने अभी इकोनॉमी अगर पढ़ी होगी तो अगर आप लैंड रिफॉर्म्स पढ़ोगे, लैंड रिफॉर्म्स में एक आंदोलन शुरू होता है जहाँ पर, आंदोलन तो नहीं, सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आता है UPZALR, उत्तर प्रदेश जमींदारी एंड एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। ऐसे ही विनोबा भावे, ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने, विनोबा भावे, वो आंदोलन शुरू करते हैं और वो कहते हैं ग्रामदान भूदान, सुना है ये? अभी पढ़ोगे आप लोग, ग्रामदान भूदान, ये सुना है? ग्रामदान, ग्रामदान भूदान, ये क्या है? ये ग्रास रूट लेवल से बॉटम अप आंदोलन है, जहां पर खुद बड़े किसान छोटे किसानों के लिए पूरे के पूरे गांव और पूरे के पूरे खेत अपने क्या कर रहे हैं, बड़ा किसान है जिसके पास 50 गांव हैं, 2 किसान, एक रेड्डी नाम का किसान था, कौन सा राम रेड्डी ऐसे करके था, उसने पूरे गांव के गांव दे दिए थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद से क्या किया, संपत्तियों को दिया इस आंदोलन में। तो ये बॉटम अप अप्रोच हो गई, ठीक है। ओके चलो, ये बॉटम अप से अब आगे आते हैं। ओके, सो न्यू पब्लिक गवर्नेंस और न्यू पब्लिक सर्विस, ये 2 और है, ठीक है। न्यू पब्लिक गवर्नेंस और न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। सो न्यू पब्लिक गवर्नेंस क्या है? यहां पर न्यू पब्लिक, अभी आया देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस और न्यू पब्लिक गवर्नेंस, ठीक है। तो सर्विस वाला आगे है, पर ये पहले, ये बाद में आया है गवर्नेंस वाला, ठीक है। तो उसको मैं मेरे ख्याल से ऊपर नीचे होगी ये स्लाइड्स, हाँ यहाँ पर से, ठीक है। न्यू पब्लिक सर्विस। सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अपने दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें थी? अब जैसे लोग पहले, अर्लियर पीपल वर सेइंग, ओ it has in the new public administration too much of power, and in the old administration and even in the new public administration the agency for change or development was the same, the traditional kind of administration, right? सरकार ही तो थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्राइवेट तो नहीं थी ना। तो लो फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ले लो। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ज़्यादा नहीं, 10-12 साल में लोगों के होश ठिकाने आ गए, बिकॉज it was leading to too much of expensive capitalism, right? And everything was being done with the private sector. So people were thinking that there is a need for state intervention. The state should come, state राज्य को आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए. They should come and stick to the basic some principles that they will give the core service to the nation or the people. So अब आता है न्यू पब्लिक सर्विस. So ये क्या कहते हैं न्यू पब्लिक सर्विस वाले अप्रोच? ये कहता है कि फोकस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट शुड बी सिटीजन्स, कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी. एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, दिस शुड नॉट बी द कंसर्न. Rather, the concern of the public administration and public management should be citizens, log, community, social society, civil society. ये होनी चाहिए. और इन्होंने कहा किया कि there is a primary role of public servants to help articulate and meet shared interests rather than control or steering the society. ये कहा गया. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या कह रहा है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कह रहा है कि गवर्नमेंट रिट्रीट ऑफ द गवर्नमेंट. क्या होता है रिट्रीट? शब्द लिख लो. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या था? रिट्रीट ऑफ द स्टेट. अब यहां क्या कह रहे हैं कि नो, देयर शुड नॉट बी ओनली रिट्रीट, रादर पब्लिक सर्वेंट को हेल्प करना है और शेयर इंटरेस्ट को सर्व करना है, और केवल
कंट्रोल या स्टीयर नहीं करना है, ड्राइव करना है। स्टीयर करने का मतलब है तुम केवल ऐसे ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहे हो, चल रही है गाड़ी, ठीक है। पावर देनी है, मोटर बनना है। ये नहीं कि तुमने देख लिया अच्छा इधर आओ, प्राइवेट तुम्हें कूड़ा उठाने का काम दे दिया है, बस हफ्ते में अपनी रिपोर्ट ले आना, साइन करा के चले, ये तो स्टीयरिंग हो गया। नाउ यू हैव टू ड्राइव इट, द बोट, गवर्नमेंट हैज टू ड्राइव द बोट। हाँ, मीन्स गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है अब। जब हम स्टीयरिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट बोल रहे हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, उसका मतलब क्या है कि मोटर किसी और के पास है, तुम केवल स्टीयरिंग घुमा रहे हो। ये पब्लिक जो न्यू पब्लिक सर्विस है वहां पर ये नहीं कहा गया, वहां पर क्या आ गया, स्टीयरिंग भी ले लो, मोटर भी ले लो, गवर्नमेंट को ही करना है। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन को पीछे करो और ब्यूरोक्रेटाइजेशन को या गवर्नमेंट ओन सर्विसेज को आगे लाओ, ठीक है। ये तो शार्प कॉन्ट्रास्ट है, जो कि कॉन्ट्रास्ट है, जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फिलोसफिकल डायमेंशन था, जो कह रहा था कि मार्केट प्रिंसिपल्स पे और सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं इंडिविजुअल, मार्केट प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, प्राइवेटाइजेशन, ब्रिंगिंग इन द मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। अरे यार हद होगी। एनपीएम के क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं? पढ़ो पढ़ो, लाइन पढ़ो, ऐसा क्या है इसमें? ये तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। क्या न्यू पब्लिक सर्विस और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सेम है क्या? नो सर। क्या डिफरेंस है सर? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सर, इट वाज जस्ट अबाउट ब्यूरोक्रेटिक सर, मतलब नहीं, देखो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या था? क्या है? एफिशिएंसी। अभी तो पढ़ा है, यस सर। फिर इसमें इतना वो कैसे हो गए कंफ्यूज? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। क्या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस क्या सेम है? What is the, if I ask you guys, what is new public management and new public service same? So, Yeah. sir, no, something is different. The different is new public management gives the principle, and new public service is the service provided by the government. हाँ, न्यू पब्लिक सर्विस में जो मैं बात कर रहा हूँ, द प्राइमरी रोल इज ऑफ द गवर्नमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में सेकेंडरी रोल दे दिया था गवर्नमेंट को। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट आउट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आउट की बात कर रहा हूँ, मैनेजरियलिज्म की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यार यही कह रहा है कि न्यू पब्लिक सर्विस जो है वहां पर जो फोकस है अब एफिशिएंसी पे नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट की बात करी नहीं इसने, नहीं, सिटीजन्स, कम्युनिटी, लोग। हाँ, तो अगर हम प्राइमरी रोल देखें पब्लिक सर्वेंट्स का क्या है, वो हेल्प करना है सिटीजन्स की, और केवल स्टीयरिंग रोल नहीं है। अब तुम्हें पावर भी बनना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, आगे बढ़ के हेल्प करो, सेवा। ये नहीं कि हमने तो प्राइवेटाइज कर दिया, बाबूजी लो हमने तो प्राइवेटाइज कर दिया, अब हम आराम से बैठेंगे, ये वाला नहीं है। जाओ उनकी सहायता करो, उनकी गांव में जाओ, कैंप लगाओ, उनकी सहायता करो। सो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थर्ड लाइन पढ़ो। दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? अपोजिट टू द फिलोसॉफिकल प्रीमाइस of new public management, which is in which transactions between public manager and customer reflect individual self-interest and are framed by market principles। मतलब सरकार, भाई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ये था ना, सरकार के लिए अब जो
सिटीजन है वो कस्टमर हो गया है, Yes, sir. यही तो था। पर यहाँ पर ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर सिटीजन नहीं हुआ है, यहाँ पर तो हेल्प करना है, हेल्प। समझ में आया? Yes, sir. और न्यू पब्लिक सर्विस कैसे डिफरेंस है ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? वो ऐसे डिफरेंस है कि पहले की ब्यूरोक्रेसी क्लाइंट्स मान रही है और कह रही है कि अरे देखो हम योजना बना रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, हम योजना बना रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, या हम योजना बना रहे हैं ICDS, हम योजना बना रहे हैं कि तुम्हारे लिए किसान के लिए ये बढ़िया है कि तुम एक काम करो, ड्रोन खरीद लो और उससे अपने यहाँ खेती में क्या लगाया करो, फव्वारे वाली मशीन से फर्टिलाइजर खरीद लो जाओ। ये क्या था? ओल्ड। Old. अब न्यू क्या है? हम नहीं, ये जो सर्विस वाला क्या है? नहीं, सर्विस वाले में है कि लोगों की सुनी जाएगी और लोगों की हेल्प करनी होगी। ड्रोन से आके ड्रोन से करना है तो करके जाओ छिड़काव। हम आएंगे। हाँ, ठीक है। तो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? पैसिव रेसिपिएंट। पैसिव रेसिपिएंट का क्या मतलब है? पैसिव। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव। अगर मैं तुम्हारे साथ एक्टिव हूं इस समय, हमारे में दोनों में संवाद हो रहा है। अगर मैं तुम्हें कहता कि बिल्कुल चुप रहो और जो मैं कह रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मेरी बात सुनो, पैसे तो पैसिव होता। तो पहली ब्यूरोक्रेसी कैसी थी? पैसे बाबूजी, ठीक है, अरे माई बाप आपने जो कह दिया वही होगा सरकार, ठीक है, ये थी। अब सरकार, सर लेट अस हैव अ कन्वर्सेशन बिकॉज वी बिलीव द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इज नॉट बीइंग एबल टू से टू सर्व द पीपल। अभी क्या है? कम्युनिटी लेड होना चाहिए और आप हमारी सर्विस करो। आप माई बाप नहीं हो, यू आर बीइंग सिलेक्टेड एज अ सिविल सर्वेंट। आया समझ में? क्या ये आप लोगों को क्लैरिटी हुई है? एक बार यस में मुझे बताएं या नो में बताएं, जो जैसे भी है। क्या क्लैरिटी है न्यू पब्लिक सर्विस के जो फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है और जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का और ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है? कनीज आप भी, इज इट ओके? अनुज? Yes, sir. ओके फाइन। सो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? पैसिव रिसिपिएंट था, टॉप डाउन था, ठीक है, टॉप डाउन था वो, टॉप डाउन। हमने नियम बना दिए, जाओ भागो यहां से, हमने नियम बना दिया कि सबको कंबल दे दो। कौन से महीने में दे सरकार? मई के महीने में दे दो। क्या करेंगे मई के महीने में दिल्ली में कंबल लेके, या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? कुछ नहीं करेंगे ना। तो ये है, ठीक। अभी नहीं, अभी आपको जाना पड़ेगा लोगों तक, उनकी सर्विस करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। कंबल गलत चला गया है तो बाबूजी हम आपका कंबल बदल के देंगे। आपके लिए क्या लेके आएंगे? आपके लिए पानी की बोतल लेके आएंगे, ठीक है, फिल्टर काटेंगे। तो पहले क्या था? जो पहले था ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट कंट्रोल एंड हायरार्की, और वो प्लूरैलिटी में फंक्शन में नहीं करता था, मोनो फंक्शन था, मोनोपोली थी ना उसकी, ठीक है, और इंगेजमेंट नहीं करता था। इंगेजमेंट कोई नहीं थी, रिलेशनशिप इंगेजमेंट में नहीं था, लोगों की बात ही नहीं सुनी जाती थी। क्या अब सुनी जाती है? हाँ, कंपैरेटिवली अब तो काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है। आप शिकायत कर सकते हो ब्यूरोक्रेट्स की भी, ट्विटर पे कर दो, है ना, प्रधानमंत्री के साथ कर दो, मन की बात में कह दो, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव भी है, ठीक है। तो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक सर्विस अलग है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से न्यू पब्लिक सर्विस अलग है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है, न्यू पब्लिक सर्विस में गवर्नमेंट का रोल भी है और लोगों का रोल भी है, कम्युनिटी का भी रोल है। और इसके भी बाद आता है न्यू पब्लिक गवर्नेंस, वो अभी हम बताएंगे। वो उसमें नेटवर्क, सिविल सोसाइटी, कॉमन लोग केवल सर्विस तक ही नहीं सीमित है, उसमें इससे भी आगे जगह है। गवर्नेंस में भी लोगों का ज्यादा रोल है न्यू पब्लिक सर्विस से, ठीक है, ओके। सो अगर हम ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस को कंपेयर करें, अगर इसका कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि क्या क्या निकल के आता है, ठीक है।
थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है इसकी? पॉलिटिकल थ्योरी, नाइव सोशल साइंस, ठीक है। अभी सोशल साइंस बन रही है, वो ये मान रहे हैं कि दो वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा वर्ग, एक जो शासन करता है, ऐसे ऐसे चलता है। लगातार सोशल साइंस में थ्योरीज बन रही हैं। 1920s में प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले, है ना, मार्क लूथर बुले, ठीक है, लिंडन नॉर्वे, उसके अलावा फेयोल, उसके अलावा F.W. टेलर, मैरी पार्कर फॉलेट, ये सब 1930s में आके ह्यूमन बिहेवियरलिज्म, ह्यूमन स्कूल और भी डेवलप होते जाते हैं। तो उस समय डेवलप हो रहा था इकोनॉमिक थ्योरी और पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस, ठीक है। पॉजिटिविस्ट का मतलब डेटा सेंट्रिक। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, और पॉजिटिविस्ट है, डेटा पे ज्यादा रोल है, वैल्यूज पे ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। इसको समझ लो, अभी लिखो मत, तुम्हारे अभी लेवल से बहुत बाहर का है, ठीक है। इसको समझ लो बस, जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाके ये देख लेना, ठीक है। रिसर्च पेपर से दिया है मैंने। न्यू पब्लिक सर्विस में डेमोक्रेटिक थ्योरी है। लोग क्या हैं? तुम्हारे सहभागिता हैं, दे आर योर हेल्प एंड यू, दे आर सर लास्ट में पीडीएफ शो करना फ्रॉम बिगिनिंग आज के लेक्चर से। ओके, ठीक है, कर देंगे, ठीक है, ओके। अब रैशनैलिटी और मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओल्ड पब्लिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी मतलब वेबर की बात हो रही है, ओल्ड। यहां पर टेक्निकल और इकोनॉमिक रैशनैलिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, मेथोडोलॉजिकल, इंडिविजुअल, पब्लिक चॉइस अप्रोच में भी हम पढ़ते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को भी। वो एक ब्रॉडर थ्योरी है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो आया। स्ट्रैटेजिकल रैशनैलिटी, सिटीजन इंटरेस्ट, सिटीजन इंटरेस्ट है, और स्ट्रैटेजिकल रैशनैलिटी है मतलब हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। पब्लिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल, लॉ में जो है वो लगा देंगे इंतजार, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में भैया ये लिखा है कि अगर तुम मर रहे होगे और 5 साल से ज्यादा का बच्चा है, वो मर रहा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो पड़ोस के अस्पताल की जिम्मेदारी है। 5 से कम का है, कब मर रहा है तभी हम देखेंगे, क्योंकि नियम अनुसार ऐसा लिखा हुआ है। ये कौन सा? ओल्ड। एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, ठीक है, पैसा दे रहे हो तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देख रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे तो चले जाओ हमारे यहाँ से। यहाँ पर एक डायलॉग, अब डायलॉग हो रहा है, क्योंकि केवल लोग ब्यूरोक्रेसी की हर बात को मानने को तैयार नहीं है। लोगों से पूछा जा रहा है, आप बताइए हमने ये नियम कानून बनाया, इस पे क्या चाहते हैं, इस पे नियम कानून बनाए, उस पे नियम कानून बनाए, इधर इस पे बनाइए, क्या चाहते हैं, हम आपस में ड्राफ्ट करके सरकार को भेजेंगे, लॉ सरकार देखे ठीक है या नहीं। सिविल सर्वेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिव है? क्लाइंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। यहां कस्टमर बना दिया इन्हें, यहां सिटीजन, ठीक। गवर्नमेंट का रोल क्या है? रोइंग, कभी रोइंग देखी है तुमने? ऐसे चप्पू से नाव चलाई है कभी? उसमें रोइंग करते हैं ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत क्या कर रही है, ताकत लगा रही है ओल्ड पब्लिक में, ठीक है। पर गवर्नमेंट की ताकत ये नहीं है कि वो ताकत अच्छी ही साबित हो, क्योंकि ताकत के अंदर घुन भी है, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। और ताकत किसके लिए लगा रही है? उसी जगह रोड बना रही है जो पोस्ट लोकेलिटी है, गाँव में तो बना नहीं कर रही है। यहाँ पर स्टीयरिंग, केवल स्टीयरिंग चला रही है, पावर कौन लगा रहा है? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसका भी रोल है। यहाँ पर सर्विंग, अब तुम क्या हो गए? सर्वेंट्स हो गए। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये अंतर तुम्हें देखने को मिल रहा है, अब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिज्म फॉर अचीविंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें सारे के सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारे के सारे बच्चों को हमें क्या कर देना है? 6ठी क्लास से प्रोग्रामिंग सिखा देंगे, ठीक है। एक गोल है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हर काम को क्या करेगा? गवर्नमेंट एजेंसी करेगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा, सरकार की और राज्यों की नीतियां हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा हर काम को। अगला, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व कर ली। यहाँ पर कोलिएशन ऑफ पब्लिक, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट एजेंसीज,
कोलिएशन ऑफ पब्लिक, यहाँ पर भी है प्राइवेट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज का, यहाँ पर भी है, पर कोलिएशन एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कैसी है? हायरार्किकल। डीआईजी ने सब इंस्पेक्टर को नौकरी से भगा दिया, ठीक है, डीआईजी ने एसएसपी पे बैड वो लिख दिया, एआरसी उसमें एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, एसीआर में, ठीक है, टॉप डाउन। यहाँ पर कैसी है? मार्केट ड्रिवन। अरे प्रॉफिट नहीं लाओगे तो संस्था बंद हो जाएगी भैया। मार्केट ड्रिवन एफिशिएंसी, देखो कि वो प्राइवेट सेक्टर तो यही काम 15 रुपए में कर रहा है, सरकारी में 18 रुपए क्यों दे, है ना। यहाँ पर क्या है? मल्टी फैसेटेड, आपको जवाबदेह केवल और केवल सरकार के प्रति नहीं है, ये मार्केट के प्रति नहीं है, आप जवाबदेह किसके? पब्लिक सर्वेंट, लॉ, वैल्यूज, प्रोफेशनल नॉर्म्स, सिटीजन इंटरेस्ट। केवल ये नहीं, लॉ में तो यहाँ भी मान रहे थे, पर वैल्यू सिस्टम भी, जब हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? इक्वालिटी वाला, ठीक है, इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक, वो तो मानेंगे ही। उसके अलावा हम वैल्यू बेस्ड भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यू भूल जाएं और केवल क्या करें? नियम अनुसार करने लगे। भाई नियम लग रहे हैं, किसी के पास नियम अनुसार कराने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए 2 रुपए नहीं है, तुम क्या करोगे? अरे एप्लीकेशन नहीं थी, तुम्हारा नहीं है, तुम मर जाओ जाके, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल नॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी में जो होते हैं, न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन इंटरेस्ट, सिटीजन्स के प्रति जवाबदेही, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, कितना विवेक है, कितना मतलब पावर है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज, हाँ, लिमिटेड डिस्क्रिशन ग्रांटेड टू पब्लिक ऑफिशियल्स। अब ऊपर से जितना नेताओं ने कहा, ऊपर के ऑफिसर ने, एसएसपी ने जितना डीएसपी को कहा वही करें। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर गोल्स हैं, तो आप क्या करो? अभी आपको ये सरकार की मिल है, इसको क्या करना है? प्राइवेट सेक्टर की तरह बढ़िया करके देना है। तो सर मैं क्या करूं? जो ना काम करे फायर कर दो, ठीक है। यहां पर डिस्क्रिशन है पर कंस्ट्रेंट है और अकाउंटेबिलिटी है। यहां पर डिस्क्रिशन है पर यूज करने से पहले 120 बार सोचना है, क्योंकि तुम अब नौकर, तुम अब सर्वेंट, किसके? लोगों के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा? टॉप डाउन होगा, ब्यूरोक्रेटिक होगा। यहां पर डिसेंट्रलाइज होगा, ठीक है, बढ़िया है, डिसेंट्रलाइज हुआ है, पर यहां कोलैबोरेटिव होगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने से, ठीक है। मोटिवेशन क्या है पब्लिक सर्वेंट्स का? यहां पर शुरू में 1950-60 में पे मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, सर्विस कोई निकाल नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है कि सरकार की जो कंपनियां उन्हें बंद कराओ और सरकार को फायदा पहुंचाओ। कि हमने देखिए इतनी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इतने सारे जो लोग थे उनको भगा दिया और उनको वीआरएस दे दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और अब क्या होगा? सरकार जो 200 करोड़ रुपए अपनी बेकार गन्ना मिल पे खर्च कर रही थी, शुगर केन फैक्ट्री पे, वो बंद करा दी। सरकार का पैसा वेस्ट होना बंद हो गया, प्राइवेट सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। पब्लिक सर्विस, डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये क्या हो गया? आपका मोटिवेशन हो गया। पब्लिक सर्विस है, डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। पब्लिक सर्विस क्या होता है? सर पब्लिक और सर्विस, पब्लिक मतलब जनता की सेवा, और डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मतलब टू हेल्प। हाँ, सोसाइटी में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये चीज। अब आप कह सकते हो सर वो तो मैं यहाँ भी कर सकता था ब्यूरोक्रेट बनके, पर यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का जो मेन रोल था, मोटिवेशन था, वो ठीक है, नियम कानून जाके देख के आ जाओ, नियम कानून भी मानेंगे, पर लिमिटेड रोल है। आपने नियम कानून फॉलो कर दिए, आपके लोगों की बात सुनते नहीं थे उस समय के ब्यूरोक्रेट। अब क्या होगा? हाँ, लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी और लोग क्या चाह रहे हैं ये देखना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस, ठीक है, डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये मोटिवेशन होना चाहिए। शाम के 5 बज गए और हो गई कलेक्टरेट बंद ना भैया, अब यहाँ पर तुम्हें 9:30 बजे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग भी करनी पड़ेगी, किस पे? ऑनलाइन, ठीक है, रात को कैंप भी लगाना पड़ेगा। हर चीज को मैं इंडियन उसमें फिट कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, पर बेसिकली तुम समझ गए कि न्यू
अगर अब मैं पूछूं ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, क्या आप बेसिक अंतर बता सकते हो? अभी नहीं बताना है, पर तुम्हें क्या समझ में आया इतना सब पढ़ के? क्या अंतर है? अच्छा चलो बताओ। ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है? ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में था ब्यूरोक्रेट्स rules they maintain distance from the people and between bureaucrats and people there is a distance between the bureaucrats and people and sir in new public service में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताओ पहले। ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंस था? so old में there is a difference between the bureaucrats and the public and new public management sir एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मैंने शॉर्ट फॉर्म याद करने को कहा था? वो दैट्स आर yes sir relevance, relevant value, efficiency. client oriented, Yes, sir. change oriented, social equity, ये सब था उसमें। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसे डिफरेंस हो गया? मैनेजमेंट जहां आ गया इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन आ गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से न्यू पब्लिक सर्विस कैसे हो गया? सर्विस जहां आ गया मतलब लोगों का भी सहभागिता आ गई, बॉटम अप। क्या ये आप सबको क्लियर है? ओके यस, अभी आज हम अपना लेक्चर यही खत्म कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से स्लाइड दिखा दे रहा हूं जहां से आप चले, ठीक है? पर ये आप सब स्लाइड तो मिल ही जाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारी स्लाइड शुरू हुई, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था, वहां से लेके आया, इसी पे छोड़ा था मैंने। फिर मैंने इसके वो बताया आपको कि कैसे मेंटेन करते हैं, कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेटिव होते हैं, गोल्स होते हैं, लॉ के द्वारा नहीं चल रही होती, गोल्स ला रही होती है, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी को कम कर दिया जाता है। गवर्नमेंट से के डिपार्टमेंट से भी कहा जाता है अपनी कमाई करो, अपने खर्चे खुद उठाओ। बैंकों से जैसे मैंने एग्जांपल दिया इससे पहले वाले लेक्चर में, बैंक अपने खर्चा खुद उठाते हैं। बैंक इलेक्ट्रिसिटी का देते हैं, कैसे? लोगों को ज़्यादा लोन पे देते हैं, कम लोन पे पैसा लेते हैं, कम इंटरेस्ट पे, ठीक है? तो ये है। और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, ठीक है? ये मैंने समझाया। पब्लिक चॉइस अप्रोच समझाया मैंने, और फिर आपको मैंने क्रिटिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के पास पावर होना अच्छा नहीं है, ठीक है? ये सब हैबरमास की बात करते हैं करीब में। फिर मैंने आपको पब्लिक सर्विस प्रॉब्लम्स और अप्रोच बताया। फिर न्यू पब्लिक ये यहाँ न्यू पब्लिक सर्विस के बारे में बताया, और न्यू पब्लिक सर्विस और ओल्ड में क्या अंतर है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद इसके बाद हम ये आगे पीछे हो गई कुछ स्लाइड, तो उसमें ध्यान रखना अभी हमने ये नहीं पढ़ा है जो आपका न्यू पब्लिक गवर्नेंस है, ठीक है? ये अभी न्यू पब्लिक सर्विस जैसे खत्म होगा इस पे आएंगे, फिर गुड गवर्नेंस पे आएंगे, फिर एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से क्या दिक्कतें हुई हैं भारत में या दुनिया में, ठीक है? वो है इम्पैक्ट। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड सम ऑफ द थिंग्स एंड विल बी मीटिंग टुमारो। Do remember to read your books, those are important. और अभी आपको बुक्स में वो नहीं मिलेगा, न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक गवर्नेंस है बुक में, देखना होगा नहीं, या होगा तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस तो होगा नहीं शायद, देखो जरा। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक अप्रोच, पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ठीक है? अभी नहीं है, तो मैं उसके नोट्स बना के दूंगा,
ठीक है? ओके, सो ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।